Hello and welcome back to my channel. Let's continue our chapter 17 livelihood from class 6th SS semester 2. Farming, cattle rearing and livelihood. Pandarwada is a small village. Salman lives here. Salman has his own farm. Salman has 10 acres of land. He himself does farming in his farm. Whenever he needs help, he takes help and continues farming. He pays for this help. He brings seeds and fertilizers from the market dealers. तो परावड़ा एक छोटा सा गांव है. इस गांव में सलमान रहता है. सलमान का अपना खेत है. सलमान के पास 10 एकड़ जमीन है. वह खुद अपने खेत में खेती करता है. जब भी उसे मदद की ज़रूरत होती है वह किसी और से मदद लेता है और खेती को कंटिन्यू करता है यानी जारी रखता है और वह उस मदद के लिए भुगतान करता है. वह बाजार से डीलरों से बीज और उर्वरक भी लेके आता है. Dealers lend him seeds and fertilizers. He returns money to the dealers when the crop is harvested. With the rest income, he makes his living for 7 to 8 months. To make living for rest of months, he generates money through cattle rearing. Salman has 1 cow and 2 buffaloes. He generates required income from their milk. Salman sells milk to the cooperative society. He makes up for his living from this income for remaining 4 months. Sometimes Salman works in an industry of a nearby city to earn his livelihood through retail work. तो डीलर उसे बीज और उर्वरक देते हैं. फसल कटने पर वो डीलरों को पैसा लौटाता है. बाकी इनकम के साथ वो 7 से 8 महीने तक अपना जीवन यापन करता है. बाकी महीनों के लिए अपने जीवन जीने के लिए वो मवेशियों के पालन के माध्यम से पैसा पैदा करता है. सलमान के पास एक गाय और 2 भैंसे हैं. वो अपने दूध से आवश्यक आय उत्पन्न करता है. सलमान सहकारी समिति को दूध बेचता है. वो शेष 4 महीनों के लिए इस आय से अपने जीवन यापन के लिए को सुरक्षित रखता है. कभी सलमान किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं. पास के शहर में रिटेल वर्क के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करता है. कनेक्शन टू द विलेज विद द सिटी. रामनगर इज अ स्मॉल विलेज. देयर इज अ मर्चेंट नेम्ड जगाभाई. He has a small shop. Vegetables are available in his shop. Along with the grocery, many necessary things of life are also available there. Soap, salt, medicines of all types are available in this shop. Most of the people grow rice in Ramnagar. If village people need anything from Jagabhai's shop, then they take rice to the shop. In lieu of rice, Jagabhai gives them their demanded things. He sells rice to the big shop of city, which he has purchased and collected from the village people at a lower rate and sells at little higher rate and earns money. रामनगर एक छोटा सा गांव है. जगाभाई नाम का एक व्यापारी है. उसकी एक छोटी सी दुकान है. उसकी दुकान में सब्जियां उपलब्ध है. किराना के साथ साथ जीवन की कई आवश्यक चीजें भी यहाँ पे उपलब्ध है. इस दुकान में सभी प्रकार के साबुन, नमक, दवाइयाँ भी हैं. ज्यादातर लोग रामनगर में चावल उगाते हैं. अगर गांव के लोगों को जगाभाई की दुकान से किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो दुकान पे चावल ले जाते हैं. चावल के बदले में जगाभाई उन्हें उनकी मांग की चीजें दे देते हैं. वे शहर की बड़ी दुकान को चावल बेचता है जिसे उसने गांव के लोगों से कम दर पर खरीदा और इकट्ठा किया है और वो बहुत कम दर पे बेचते हैं और फिर पैसे उनसे कमाते हैं. वी हैव रीड अबाउट द केस ऑफ farm labor like Madhuba. In addition to a big farmer like landlord, we saw details of small farmers like Salman as well as the small traders like Jagabhai. They also have other sources of income along with a small shop. Besides cattle rearing and retail labor, we also have noticed in detail about the people who live life by earning through retail work in the industrial estate. तो हमने मधुबा जैसे खेत श्रम के मामले में के बारे में पढ़ा है. एक बड़े किसान के अलावा जमींदार की तरह हमने सलमान जैसे छोटे किसानों के साथ साथ जगाभाई जैसे छोटे व्यापारियों का भी विवरण देखा. उनके पास एक छोटी सी दुकान के साथ साथ आय के अन्य स्रोत भी हैं. पशुपालन और रिटेल वर्क के अलावा हमने उन लोगों के बारे में भी विस्तार से देखा है कि जो औद्योगिक संपदा में रिटेल वर्क के माध्यम से कमाई करके अपनी जीवन यापन करते हैं. अदर वेज ऑफ अर्निंग. Sanchada is a small village. It is situated on the seashore. Rudiben and Lakhimal live here. They do not have their land for farming. They neither do retail work nor earn money with any permanent work at any place. Rudiben and Lakhima are engaged in fishing. Fisherman is called a food producer.
Fish is a marine life. Rudy Bain's husband helped her in her household chores. Lakima is an old woman. Her husband has died. There is a small boat with Rudy Bain and Lakima. They keep it at the seashore. They have a small net and other devices to catch fishes. They go into sea to catch fishes. They have to go far away from shore into the sea to catch fishes. They do fishing for 8 months for getting livelihood. तो अभी हम यहाँ पे दूसरे और तरह के कमाने के जरिए देख रहे हैं। तो संचड़ा एक छोटा सा गांव है। ये समुद्र के किनारे पर स्थित है। रूडी बेन और लकीमा यहाँ पे रहते हैं। उनके पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है, तो वे न तो रिटेल काम करते हैं और न ही किसी भी स्थान पर स्थायी काम के साथ पैसा कमाते हैं। तो रूडी बेन और लकीमा मछली पकड़ने में बिजी थे। मछुआरों को खाद्य उत्पादक कहा जाता है, यानी कि हम उसे खा सकते हैं। मछली एक समुद्री जीवन है। रूडी बेन के पति उसके घर के कामों में उसकी मदद करते हैं। लकीमा एक बुढ़ी औरत है, उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। रूडी बेन और लकीमा के पास एक छोटी सी नाव है। इसे समुद्र के किनारे पर वो रखते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए उनके पास एक छोटा सा जाल और अन्य उपकरण है। वे मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। उन्हें मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे से काफी दूर जाना पड़ता है। वे जीविका प्राप्त करने के लिए 8 महीने तक मछली पकड़ने का काम करते हैं। It is risky to explore sea during the monsoon season. Hence, Rudy Bain and Lakima do not go far fishing during monsoon. Person like Rudy Bain and Lakima are helpless in front of natural calamities like rain, cyclone, etc. They have to face difficulties during these times of calamity, since they do not have any other way to generate income. When they are unable to do fishing, it is very difficult to get work in this time. That is why they have to borrow money to make living. मानसून के मौसम में समुद्र का पता लगाना जोखिम भरा होता है, इसलिए रूडी बेन और लकीमा के लिए अकेले वहां पे नहीं जाते। मानसून के दौरान मछली पकड़ना रूडी बेन और लकीमा जैसे व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश, चक्रवात आदि के सामने असहाय होते हैं। इन आपदाओं के समय उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास आय उत्पन्न करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब वे मछली पकड़ने में असमर्थ हैं, इस समय में काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्हें जीवन यापन करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। When it is possible for them to catch fish and to sell them, then only they can return money. They face difficulty in fishing too. These days pollution is increasing everywhere. They have to go far away into the sea for fishing. Plastic and polluted water of industries go to the sea through rivers or drainage, and due to the sea water gets polluted. Number of fishes is also decreasing due to the pollution. This situation creates tension for Lakima and Rudy Bain. Fishing is not possible during the cyclone. Economically, they were severely affected during tsunami. Their boat was also damaged during this time. She could not go for fishing for a long time. Hence, government financially helped them to purchase a new boat. तो जब उनके लिए मछली पकड़ना और उन्हें बेचना संभव होगा, तभी वे पैसे लौटा सकते हैं। उन्हें मछली पकड़ने में भी कठिनाई होती है। इन दिनों हर जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्हें मछली पकड़ने के लिए समुद्र में बहुत दूर जाना पड़ता है। उद्योगों का प्लास्टिक और प्रदूषित पानी नदियों या जल निकासी के माध्यम से समुद्र में जाता है, और इस कारण समुद्र का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। प्रदूषण के कारण मछलियों की संख्या भी कम हो रही है। यह स्थिति लकीमा और रूडी बेन के लिए तनाव पैदा करती है। चक्रवात के दौरान मछली पकड़ना संभव नहीं है। आर्थिक रूप से सुनामी के दौरान वे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इस दौरान उनकी नाव भी क्षतिग्रस्त है, यानी बहुत ही उसको तकलीफ हुई थी। वो लंबे समय तक मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सकती थी, इसलिए सरकार नई नाव खरीदने में उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। इन दिस वे many people go to the cities from village and they sell their items like milk, vegetables or other things to earn their living. तो ऐसे में बहुत से लोग गाँव में से शहरों में जाते हैं और वे अपना सामान जैसे दूध, सब्जी, जीवन जीने के और भी जो चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को शहर जाके वो लोग बेचते हैं और पैसे कमाते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।